Good afternoon, Jitendra sir. This is Wasim. Can you hear me? Yes. Yes, sir. You know how to share the slides? You have an Yes. option share. Please Yes. open your slide first, then share it. And I will tell you what will be the first of all, Ashok sir will brief about National Water Mission. Then your turn will be there. They will give you a 1 hour to speak, and after that there will question answer session, and that thank you note and end. Okay. Okay, the first Ashok sir will be the presenter. Then I will make you the presenter. Then you have a right to share things. So just please open your PPT already on the screen. So it will help Yeah. to. Okay, thank you, sir. Okay. सर एक लाइट साइड में आपके टॉप पे लाइट जल रही है, वो थोड़ा सा फ्लैश कर रही है, थोड़ा सा आप पीछे, थोड़ा सा, हाँ ये बस, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। Okay. और थोड़ा सा पीछे तो आपका पूरा फेस सही से आएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही सर, ठीक है। Okay. Okay, Wasim, can we start? Yes, sir. Good afternoon, everyone. I welcome you all in today's Water Tech Talk being organized by National Water Mission, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, and supported by Water Digest. Just to inform you all that today, Dr. Ashwaghosh Ganju, former director at SES, could not be with us today due to unfortunate circumstances, but we are delighted to have Mr. Jitendra Singh Chaudhary, founder of Shuddham India, as our new speaker. Now I invite Shri G. Ashok Kumar, Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission, to kindly propose the opening address. Over to you, sir. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Jitendra Singh जी. स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में. आप म्यूट कर लीजिएगा थोड़ा 5 मिनट के लिए. हाँ ठीक है. Welcome everybody for this 6th water talk thing, which program which we
up after the successful introduction of the water talks. उसके बाद हमने ये शुरू किया था water tech talk में, and पिछले 5 बार में we also had very high quality technical discussions, and we had very good participation also, and we had people who had done very innovative solutions to various water issues. Before getting into details on the water talk, let me take a few minutes on the immediate issues related to National Water Mission. सबको पता है लास्ट 5-6 महीने से almost 6-7 months से National Water Mission had been taking up this campaign, catch the rain where it falls when it falls. इसका काफी अच्छा प्रचार भी हुआ था, काफी 150 से ज्यादा वेबिनार भी हुए थे, एंड हम हर सैटरडेज को डीएम्स के साथ भी कैच द रेन कैंपेन के बारे में डिस्कस करते थे. ऑलमोस्ट 60-70 डीएम्स भारत के कई कोने से डीएम्स और एनजीओस भी इसमें जुड़े हुए थे. दिस कैंपेन हैड बीन गोइंग ऑन वेरी वेल, एंड पिछले दिसंबर 21 को मंत्री जी, हमारे मंत्री जी विजेंद्र सिंह शेखावत जी, एंड ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर अफेयर्स किरण रिजिजू जी जॉइंटली एक अवेयरनेस कैंपेन नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ किया था. वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है. पिछले हफ्ते में हमारा जो रिपोर्ट मिला है उसमें से 90 लाख लोग इस अभियान में जुड़े हैं अभी तक. They had been promoting the awareness about catch the rain campaign, जैसे नुक्कड़ नाटक या वॉल राइटिंग, काफी इलाकों में वॉल राइटिंग्स हुआ है. हमारे पास कम से कम 100 फोटोज रोज आते रहते हैं देश के कई कोने से कि हमारा वाटर वॉल राइटिंग्स के फोटोज के बारे में या कोई एक्टिविटीज जिन्होंने जो नेहरू युवा केंद्र संगठन करते हैं उसकी एक्टिविटीज के बारे में बहुत सारा मटेरियल्स आते रहते हैं. एंड इतने फोटोज और इतने reports आते हैं. We are very happy that the way it is going, and report as per the Nehru Yuva Kendra Sangathan about 2 weeks back was actually 2 weeks back. So 92 lakh people have already joined the campaign. It's a very major success which we have had. And अगर हम आप Google में भी सर्च करेंगे तो कैच द रेन टाइप करके सर्च करेंगे तो ज्यादा एंट्री हमारे आता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड में भी आपका हमारा रिकग्निशन हो रहा है. इसके साथ ही हमारा सबसे बड़ा रिकग्निशन हमको तब मिला जब प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने मन की बात 28 फरवरी के मन की बात में कैच द रेन के बारे में जिक्र किया. उन्होंने ये आदेश दिया था. उस टॉक में तकरीबन 5-6 मिनट वाटर के लिए भी सेपरेटली रखा गया था. उसमें से ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हमारे कैंपेन के बारे में बताने के लिए प्रधानमंत्री ने टाइम रखा था. और उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग इस इमीडिएटली स्टार्ट दिस कैंपेन शक्ति अभियान. तो उनके आदेश अनुसार मार्च 22 वर्ल्ड वाटर डे में वी विल बी स्टार्टिंग द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन. ये कैंपेन इट विल बी प्रॉब्ली वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एवर, बिकॉज हमारा उद्देश्य की प्रधानमंत्री will address all the sub-पंचेस and district magistrates of this country जहाँ पे elections ना वो states के सरपंचेस और DMs को प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे. और प्रधानमंत्री के एड्रेस के बाद सरपंचेस will hold special ग्राम सभा every ग्राम पंचायत. So it will be a huge activity, first time in the country. तकरीबन 2.5 लाख ग्राम सभा में ग्राम पंचायत में वाटर के बारे में ग्राम सभा होंगे पहली बार. एंड उसमें ग्राम के वाटर के संरक्षण के बारे में बताएंगे, वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताएंगे, और अगले साल के वाटर कंजर्वेशन प्लान्स को भी, वाटर मनरेगा के काम के बारे में भी सबके बारे में चर्चा हुई. और वो लोग अभी वहाँ पे एक जल शपथ भी लेंगे. This will be, as I said, a massive campaign where इतने देश के इतने लोग एक साथ एक ही दिन में वाटर के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे और आगे एक साल का प्रोग्राम जॉट आउट करेंगे. मोर देन दैट, ये मार्च अप्रैल में
जब 3 महीने हमारा पास है वो फॉर द प्री मानसून पीरियड, 3 मानसून पीरियड में करना क्या है, कैसे करेंगे उसको साइंटिफिकली मैप करने के लिए भी प्लानिंग फॉर इट. So we are actually planning that in the next 3 months देश के हर वाटर बॉडी को मैप करे, न्यूमरेट करे, मैप करे, चिन्हित करे और उसको उसका डिजिटल मैपिंग बनाएंगे ताकि हमारे पास एक इन्वेंट्री हो. ये सबसे बड़ा बड़ा कार्यक्रम होगा जहाँ पे वाटर के बारे में चर्चा होगी और सब वाटर बॉडीज का भी मैपिंग होगा. ये दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग. Yesterday, कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी सब 5-6 सीनियर गवर्नमेंट सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग किया इसके बारे में. और ये जो हमारा वाटर जल शक्ति अभियान कैच रेन कैंपेन will be part of the will be also be joining the 75th आजादी का जो महोत्सव चल रहा है, अमृत आजादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव चल रहा है, उससे भी जुड़ जाएंगे. तो दिस शुड बी अ मेजर इवेंट. एंड ऑल्सो वी आर टेलिंग दैट the next 3 months all school buildings, Anganwadi centers and preferably all government buildings में rooftop आवासीय बनाएंगे और जितने भी कंपाउंड्स के अंदर पानी आता है उस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर उसको वहां के संग्रह करने की भी कोशिश करेंगे. दिस इज अ मैसिव ड्राइव. Funds have been tied up by Manrega and the state funds have been tied up, and probably I request all of you to join in that this campaign on 22nd March at 11 o'clock. Join at 11, 10:15 a.m. onwards. Some programs will go on, and so this is the tentative plan for it. Anyway, coming to today's program, today Dr. Ashwa Ghosha Gunju was issue on the spatial and temporal variability of snow cover in Western Himalayas, develop snow cover in simulation model and operational avalanche forecasting model for Indian. Hey, just 1 second. Hello.
sorry, but it was about the. So anyway, so he had some personal tragedy. That's why he could not come today. Anyway, but we have a very interesting person, scientist Jitendra Singh Chaudhary ji, who has done a very interesting innovations, because we have to promote local technology, local innovation in that. So उन्होंने he is a research fellow with IIT Kanpur. Jitendra Singh Chaudhary is from Madhya Pradesh. He has done mechanical engineering from Ujjain, and he's now, he was also an intern from IIT Roorkee. He has done a lot of innovations and the winner of the Young Scientist Award in a national symposium, and he's also popularly known as Aquaman because of the project he has developed, project called Shuddham. And for that innovation, he has been awarded as Water Hero by our Department of Water Resources in February 2020. He also got a lot of awards for the innovations he had done in the water sector. He is also a recipient of Eklavya Award in the national project competition. He was also in a social enterprise award from Asim Premji University, Bangalore. Is selected among the 10 innovations Tata Social Enterprise Challenge 2018 held in IIT in Calcutta. Both are awards in lab. So his very interesting innovation is about using grey water for cleaning up and the grey water and making it for. This is a very important innovation because if you remember in one of our water talks, Ayappa Masagi also, Mr. Ayappa Masagi from Bangalore also was insisting on using a large quality of grey water available to be treated and used for non-potable use. उनका जो research का जो output है जितेंद्र सिंह चौधरी जी का, that is basically a very low cost, low footprint वाला model है. इसमें grey water and water from not the sewage, other waters can be treated and for very, very low cost. The cost of water generation is also very low because he says that it will be about very low investment cost and very low cost. Remember at last water talk when we talked about the testing the water quality, using that Padmavati innovation from the IIT Kanpur, and also the easiness it makes in transportation of the water samples from remote locations to a searching lab. Similarly, very, very low cost, noise free, low maintenance, chemical free filter water filtration plant he has developed. तो जितेंद्र जी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने प्रयोग के बारे में बताएं, and it is very successful model and probably this will be a big water game changer in the rural water sector. जितेंद्र सिंह जी आप अपने talk शुरू कीजिए. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आई एम वेरी थैंकफुल, दिल से थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आई फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. एंड आई एम आल्सो थैंकफुल टू दिस गवर्नमेंट कि मैंने जो चीज़ मैंने 2013 में देखा था, जो चीज़ मैंने 2013 में देखा था, वो चीज़ आज मेरा जो ड्रीम था, मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो सोच था, उसके अकॉर्डिंग आज काम हो रहा है वाटर सेक्टर में. क्योंकि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन इंजीनियरिंग इन 2013, तब मैं राजस्थान में पढ़ता था और मैंने राजस्थान के एक जगह देखा था कि एक आदमी खाट पे बैठ के नहा रहा है, ठीक है, और खाट उस पानी को नीचे स्टोर कर रहा है और उस स्टोर पानी को शायद वो दूसरे चीजों में यूज कर रहा था. तो वहीं से एक अचानक से लगा मुझे कि यार मतलब ऐसा आज यहाँ है, कल हमारे यहाँ आने वाला है, हर जगह कहीं ना कहीं वाटर क्राइसिस आने ही वाला है. मैं पढ़ता भी रहता था कि वाटर क्राइसिस आने वाला है, 2040 तक शायद हमारी नदियों में पानी नहीं रहेगा क्योंकि वाटर जो लेवल है वो नीचे जा रहा है. तो मुझे वहीं से आइडिया लग गया था कि यार हम लोग वी कांट मेक वाटर, वी कैन रिसाइकल द वाटर, कि हम लोग पानी को बना नहीं सकते, बना तो सकते लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ जाता है और इतनी क्वांटिटी में बना नहीं सकते. तो मैंने जो सोचा था वो यही सोचा था कि यार वी कांट मेक वाटर, ओनली वी कैन रिसाइकल द वाटर, हम लोग इस तरीके से पानी को रिसाइकल कर सकते हैं. तो 2013 से ही मैंने एक
एक मिशन स्टार्ट कर दिया था कि मुझे कुछ ना कुछ वाटर को रिसाइकल करने के लिए ऐसा कुछ बनाना चाहिए, ऐसा कुछ डेवलप करना चाहिए। मैंने पूरा अपना जो इंजीनियरिंग था, उस इंजीनियरिंग में पढ़ाई के अलावा अगर कोई काम दूसरा किया तो वो केवल वाटर के जो प्रोजेक्ट था, जो शुद्धम था, उसी पे काम करता था कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ, ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जो बहुत सिंपल हो, टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं, क्योंकि कॉस्ट भी मैटर करता है। तो बहुत सारी चीजों को देखने के बाद 3 4 5 साल लगे और धीरे धीरे चीजें होती गई। वो मैं शेयर करना चाहता हूँ उसके बारे में। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है? इज इट विजिबल? यस Go सर, ahead. फुल स्क्रीन कर लीजिए। हाँ, फुल स्क्रीन कर लीजिए इसको। एक सेकेंड। हाँ, दिख रहा है? यस सर। ओके ओके ओके। तो इस तरीके की मैंने जब कहानियां देखी कि हम लोग जो और उसके बाद में जब डाटा स्टार्ट किया मैंने कि वाटर क्राइसिस क्यों ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है वाटर की, तो देखा कि हम लोग जो है 20% वाटर ही हम लोग खाना बनाने में और पीने में यूज करते हैं। मतलब इसमें यूज करते हैं खाना बनाने में और पीने में, इनमें केवल 20% वाटर यूज होता है। 80% जो वाटर यूज होता है वो होता है नहाने में, कपड़े धोने में, फ्लश में, फ्लोर वॉशिंग में, कार वॉशिंग में, मतलब जितनी भी चीजें हैं इन सारी चीजों में होता है। तो मैंने बोला कि यार ये 20% तो चलो अलग रख दो, इससे कोई है, लेकिन ये जो 80% वाटर जो बह के नाली में होके जा रहा है, तो इससे दो प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो वाटर शॉर्टेज हो रहा है, डेली डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर हम लोगों को रोज अलग लगता है, तो वो हो रहा है। तीसरा चीज ये हो रहा है कि ये जब नाली में बह के रिवर में जाता है तो रिवर को भी पॉल्यूशन का पोल्यूट करता है, कि नदी को भी गंदा करता है। और चौथा बात मैंने जो सोचा वो ये सोचा कि यार कहीं ना कहीं ये वाटर वापस ट्रीट होता ही है, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू या कहीं ना कहीं अगर ट्रीट होता है तो उसकी कॉस्ट अलग लगता है। तो क्यों ना हम लोग जो पेन पॉइंट है उसी को टारगेट करके उसी पे काम करें। तो मैंने सोचा कि ये जो घर से निकलने वाला पानी है इसी को कम अपन कर दें, कि हम लोग ऐसा कर दें कि ये घर से निकलने वाला पानी ही कम हो, तो ये वहां तक जाएगा ही नहीं। तो फिर सोचा कि हम लोग, मैंने पूरा एक ये किया कि जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड किया उसमें ये किया कि ये जो पानी बह के जाता है इसके कारण ये होता है। तो ये सोचा कि इस पानी को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग जितना नहाने में, कपड़े धोने में, कार वॉशिंग में, फ्लर वॉशिंग में, ये जो सेकेंडरी पर्पस में जितना यूज होता है, इस पानी को रिसाइकल डोमेस्टिक लेवल पे कर लिया जाए। तो जब मैंने लिटरेचर रिव्यू किया, बहुत सारी स्टडीज पढ़ी, तो उसमें कि एसटीपी ईटीपी प्लांट ये होते हैं, कुछ दूसरे भी होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता था कि केमिकल डोजिंग होता है। और दूसरी चीजें ये होती है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा लगती है, बड़े प्लांट होते हैं, मतलब ज्यादा जो वाटर डिस्चार्ज होता है उसमें काम आता है मैक्सिमम। तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद पता चला कि यार ऐसा सिंपल मॉडल बनाना है, ऐसा सिंपल मॉडल बनाना है जो ये घर में बिल्कुल इजीली हो, कि आपने लगाया, आपका पानी गया, फिल्टर हुआ, आपने यूज कर लिया। तो ये, और सबसे बड़ा जो जो चीज थी वो था कि कॉस्ट ऐसा होना चाहिए और केमिकल फ्री होना चाहिए। तो उन सारी चीजों को करते 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 फिर शुद्धम का आइडिया आया कि यार मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो केमिकल फ्री हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो, लो कॉस्ट हो और मेंटेनेंस भी बहुत इजी हो और आदमी इजीली यूज कर सके। तो मैं अपना आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग में था, मेरे पास पैसा उस समय मैंने अपना आइडिया किसी को, शायद एक दो को बताया था, लेकिन कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो मैंने जैसे तैसे करके 1000 1500 रुपए कहीं से इकट्ठे किए थे, क्योंकि माय फादर इज फार्मर और बहुत ही, मतलब निडी फैमिली से हूँ मैं, तो इतना कुछ था नहीं, बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग किया था, कर रहा था। तो पैसा इतना था नहीं, लेकिन मैंने एक अपना जो दोस्त था उसको अपना आइडिया सुनाया। तो उसने बोला, आइडिया ब्रो भाई अच्छा है, तू एक काम कर, 2000 रुपये ले और बना, इस मॉडल को बना तो सही, पहले देख तो सही। तो 2000 रुपये में क्या बना सकता था? 2000 रुपये में कुछ था नहीं, फैब्रिकेट कुछ हो नहीं सकता था। तो मैं दूध की टंकियां लाया,
5-5 लीटर के दूध की टंकियां लाया और उनको खड़ा किया, उसका मॉडल बनाया मैंने, और 2000 रुपए में बन गया था वो। और उसमें क्या करता था कि मैं खुद ही नहाता था, मैं खुद नहाता था, पानी को बाथरूम का जो जहाँ से वाटर निकलता था वहां पे कपड़ा डाल देता था, और कपड़ा डालने के बाद क्या करता था कि उस पानी को पानी जाता नहीं था, उस पानी इकट्ठा हो जाता, उसको बाल्टी में भर के अपनी जो अब मैंने प्रोटोटाइप बनाया था उसमें डालता था, और फिल्टर पानी को बड़े आराम से मस्त देखो के देखता था। कई बार लैब में भी टेस्ट करवाता था कि यार ये हो जाए, लेकिन हर बार करवा नहीं सकता था, लैब के पैसे लगते थे। तब फिर खुद ही टेस्ट करना सीख लिया, खुद ने टेस्ट लगा किए। फिर धीरे 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 आगे बढ़ता गया। फिर अपने जो मेरे जो जूनियर्स थे इंजीनियरिंग में हॉस्टल में, उनको बोलता था, रिक्वेस्ट करता था कि भाई यार तुम नहाओ, कभी कपड़े धो, पानी वानी वेस्ट हो जाए तो इसमें लाके डाल देना, और एक पेन और कॉपी रख दिया था कि इस पेन में एंट्री कर देना कितना पानी तुमने डाला और किसने डाला, अपना नाम लिख देना। तो ऐसे ऐसे करके फिर वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि यार इसमें ऐसा हो रहा है, चोक हो रहा है। फिर एंटी चोक मैकेनिज्म डेवलप किया। फिर सोचा यार ये एंटी चोक मैकेनिज्म में ये है, फिर उसकी जो जो कमियां आती गई धीरे 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 निकालते गए। फिर मुझे थोड़ा सपोर्ट कॉलेज से मिल गया था, तो कॉलेज में फिर मैंने बनाने के पैसे, वहाँ वर्कशॉप में काम करने का वो मिल गया, फिर बनाने का पैसा भी थोड़ा बहुत कॉलेज से मिल गया था। तो एक मॉडल बनाया और अपने हॉस्टल में ही लगाया। और जब पानी अच्छा फिल्टर होने लगा तो हमारे कॉलेज के जो जो थे चेयरमैन सर, उन्होंने बोला अपन 3-4 लगा देते हैं ऐसे। तो हमने हॉस्टल में 3-4 लगाए। जब वो लगे फिर उनके कुछ लिमिटेशंस था, कुछ ड्रॉबैक थे, वो सामने आए कि यार इसमें शुद्धम में इसमें ये नहीं कर सकते। तो ये वाला मेरा पहला मॉडल था, सबसे पहला जो मैंने अपने हॉस्टल में लगाया था शुद्धम करके। और जब देखता था कि यार ये कभी कभी चोक भी हो जाता है इसमें, ये प्रॉब्लम से, तो धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन करना चालू कर दिया। क्लास से आने के बाद यहाँ पे काम करता था। तो मतलब इसमें ये था कि मैं एक एक जैसे कहते हैं ना कि एक होप था मेरा, एक एक उम्मीद जुड़ गया था इससे कि मैं इसमें कुछ करके छोड़ूंगा। और उस समय तो शायद इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन धीरे 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 खुद बनाता था, खुद सामान लेके आता था, उठा के लाता था, और बड़ा मजा आता था कि यार अब कुछ करना है, कुछ बना के। जब वाटर फिल्टर होता था ना तब बड़ा मजा आता था। तो ये वाला पहला बेसिक मॉडल था बनाया। फिर उसके बाद में धीरे 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 और मॉडिफिकेशंस आए। तो मॉडिफिकेशंस में हमने कुछ इस तरीके से फिर और भी बनाए। ये वाला जो ऑटोमेटेड मशीन बनाया कि इसमें पानी डालो, ऑटोमेटिक फिल्टर होता है। पहले मैनुअल बनाया, मैनुअल के बाद में हमने क्या किया कि ऑटोमेटेड बनाया। ऑटोमेटिक में हमने ये देखा कि पानी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि डाला पानी ऑटोमेटिक वो ले फिल्टर करे और ऑटोमेटिक वहां तक पहुंचा दे आपके टैंक तक, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब हम लोग उसमें और थोड़े मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। उसमें हम लोग ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि आप बिल्कुल एक गीजर की तरह बना रहे हैं, कि गीजर की तरह आपने अपने बाथरूम में लगाया, और बाथरूम में लगाने के बाद जैसे ही कोई बाथरूम में गया, पानी थोड़ा सा भी अगर वहां गया तो वो ऑटोमेटिकली उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग वाला कर रहे हैं कि वो वाटर को उठाएगा, पानी को लेगा, फिल्टर करेगा, आपके टैंक तक पहुंचा दिया। आप उसको फ्लश में यूज करो, कार वॉशिंग में करो, फ्लोर वॉशिंग में करो, कपड़े धोने में करो। इवन इतना क्लीन पानी हो जाता है कि आप उसको ये भी कर सकते हो, अ, आप उसको नहाने तक में यूज कर सकते हो। बट मैं नहीं बोलता नहाने का, बट फॉर ऑल द सेकेंडरी पर्पस, कि आप सेकेंडरी पर्पस में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो मैंने ये पूरा फिर कैलकुलेशन किया कि आदमी जितना पानी फ्लश में यूज करता है, जितना इन चीजों में यूज करता है, उतना पानी हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मेरा एक और चीज मैंने बहुत अच्छे से समझी कि हम लोग अगर सीवरेज को वाटर को ट्रीट करके हम लोग फ्लोर वॉश करवाएंगे तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ा मेंटेलिटी होता है कि यार ये टॉयलेट का पानी है, ठीक है, इसमें टॉयलेट भी मिक्स है, ये वो चाहे कितना भी क्लीन कर ले हम लोग केमिकल डोजिंग करवा के या ऐसा कुछ, तो नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सोचा कि यार हम लोग ये जो नहाने, कपड़े धोने का और ये जो हाथ मुंह धोने का ये जो पानी होता है, और इतना ही पानी लगभग लगभग हम लोगों को फ्लश के लिए और ये जो गार्डनिंग वार्डनिंग इनमें चाहिए होता है।
तो मैंने सोचा कि यार ये बिल्कुल कैलकुलेशन किया तो बराबर आ रहा था कि जितना फ्लश में जितना आप इधर से नहाने कपड़े धोने में यूज कर पानी जो वेस्ट होगा वो फिल्टर होके आप उसको फ्लश में यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उससे जो आपका जो डेली डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर है वो 50 से 60% तक कम हो जाता है। 50 से 60% तक आपका डेली डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर उससे कम हो जाता है। अब कैसे होता है कि उसमें क्या होता है, आपको मैं शायद वर्किंग वीडियो भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो उस तरीके से बेसिकली धीरे 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 आइडियाज आते गए। नहीं, शायद नहीं चल रहा है वीडियो, आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं उसको। तो वहां से फिर धीरे धीरे लगा, फिर ये लगा कि यार इसको कमर्शियल मॉडल बनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो वो कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए जो दिमाग में आ रहा था वो ये आ रहा था कि लोगों का बजट में पैसा इतना होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बना दिया, बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी बना दिया, लेकिन वो आई 2-3 लाख का रहा है। अब जैसे एसटीपी और ईटीपी प्लांट होते हैं तो उनका कॉस्टली भी होता है। तो मेरा वैसा कोई माइंड नहीं था कि बहुत बड़ा बनाऊं या बहुत ज्यादा लुकेबल बनाऊं या एकदम ऐसा बनाऊं कि आधे लगे कि हाँ लेकिन मेरा ये, मैं इंडिया के जो रूरल एरियाज थे, गांव था, या जो लोग गरीब हैं, या कोई भी इंसान है जो उसको अफोर्ड कर पाए, तो मेरा को यही दिमाग में रखे कि 20 रुपीज पर लीटर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए कॉस्ट एनी हाउ। अगर आप 1,000 लीटर पर डे वाटर फिल्टर पर डे फिल्टर करने वाला अगर वो सिस्टम लगा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट मैक्सिमम 20,000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए एनी हाउ। उसके लिए मैंने कुछ अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी लगाया कि यार इसमें यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने पूरा 1 से 1.5 साल उस पर केवल कॉस्ट को रिड्यूस करने पे काम किया। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये बहुत ही बेसिक मॉडल था जो मैंने अपने कॉलेज की वर्कशॉप में बनाया था, और इसको 2017 में पेटेंट फाइल किया। और धीरे 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 जैसे जैसे मैं करता गया उसके साथ मुझे बहुत सारी चीजें होती गई कि कॉन्फिडेंस मिलता गया, कॉन्फिडेंस होता गया, सपोर्ट मिलता गया। मेरे अपने कॉलेज ने भी सपोर्ट देना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे कुछ बनाए, कुछ लगाए, तो धीरे धीरे वो जर्नी, फिर उसके ड्रॉबैक समझ में आते गए, फिर और उसको मॉडिफाई करना गया। अब हम लोग कुछ ऐसा बना रहे हैं। तो जब मैंने इसको जब इसको बनाना चालू किया था मैंने 2013 में, तब दिमाग में कुछ नहीं था, कोई आइडिया नहीं था मेरे दिमाग में कि मैं बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इनोवेटिव कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। मैं वेस्ट को लेकर थोड़ा एक्टिव होता हूँ। अभी जो है मैंने 2011-12 में जब देखा था कि जो कुछ एक पेपर में आया था एक बार कि इतना टन गेहूं सड़ गया इस साल, ये हो गया, तो मैंने बोला कि यार ये सड़े हुए जो है इसको हम, उससे मैंने इथेनॉल बना दिया था। तो मेरा यही रहता है कि हम लोग वेस्ट से वैल्यू क्रिएट करें। मैं अभी आईआईटी कानपुर के साथ वेस्ट टू वैल्यू पे ही काम कर रहा हूँ। अभी मैं वहां पर एक और चीज ये सुद्दम में जोड़ रहा हूँ कि वहां पर मैं ये कर रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट और रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ कि उसके जो फिल्टर्स हैं, जो कार्बन फिल्टर है, एक्टिवेटेड कार्बन है, या ये चीजें हैं, वो क्या कर रहा हूँ मैं कि वो जो टेम्पल से जो जो कोकोनट शेल निकलते हैं, जो जो मंदिर से जो 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 नारियल वो जब भगवान को अर्पित करने के बाद जो बचते हैं, उस नारियल को मैं ले रहा हूँ कि मुझे कोकोनट शेल ऐसे पैसा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये वेस्ट है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ वहां से मैंने उसको उठाना चालू, वहां पे मैंने कि मैं इस जो वेस्ट है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, इस कोकोनट शेल को उठाऊंगा और इसको अपने वाटर फिल्टर में इसको ट्रीट करके, हीट अप करके, इसका एक्टिवेटेड कार्बन बना के मैं अपने फिल्टर में यूज करूंगा। तो मेरा जो फिल्टर के जो 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 मेंटेनेंस कॉस्ट है,
जो पर लीटर अभी भी बहुत कम है, लेस देन 1 पैसा लीटर है। आप 1000 लीटर पानी फिल्टर करिए, 3 से 4 रुपए का खर्चा आएगा, उससे ज्यादा नहीं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई यूज नहीं है। आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज है लेकिन थोड़ा बहुत कम है कि थोड़ा बहुत सेंसर वेंसर और इनमें जितना होता है वही, बाकी जितना आप टंकी से नीचे से लेके ऊपर पहुंचाते हैं उतने ही पानी में वो नीचे से लेके फिल्टर करके, सिंगल पंप यूज किया है मैंने, तो वो सिंगल पंप के थ्रू नीचे से उसमें फिल्टर होके पूरा टैंक तक पहुंच जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा वो नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैं मेंटेनेंस कॉस्ट पे काम किया कि ये जो टेम्पल से, मैं आईआईटी कानपुर में इसी वेस्ट टू वैल्यू पे काम कर रहा हूँ। तो वहां पर जो टेम्पल से जो जो कोकोनट शेल निकलेगा, उन कोकोनट शेल को मैं लूंगा और उन कोकोनट शेल से क्या करूंगा कि उसका एक्टिवेटेड जो जो मेरा फिल्टर है उसमें जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो मैं उसी से बनाऊंगा, तो मेरा जो कॉस्ट है वो और कम हो जाएगा। फिर मैं दूसरी चीज इसमें ये जोड़ रहा हूँ, मैं वाटर के सेक्टर में दूसरी चीज ये जोड़ रहा हूँ कि मैंने एक नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ा था कि 2 लाख लोग हर साल सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलने से हमारे देश में मर जाते हैं। तो मेरे को वहीं से आइडिया आ गया था कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ कि हर इंडियन को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, और वो अभी काम मैं आईआईटी कानपुर के साथ ही कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि उसके लिए मैं इतना सस्ता वाटर प्योरीफायर बना रहा हूँ जो 3-4 स्टेजेस में वाटर को प्योरीफाई करेगा, उसमें जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस है उनको भी मारेगा, और वो केवल पानी को प्योरीफाई नहीं करेगा, वो पानी को ठंडा भी करेगा। और उसका कॉस्ट इतना कम है, मैं भी फाइनल कॉस्ट नहीं कर पाया हूँ लेकिन इतना कम है कि हाँ, हर इंडियन उसको ये कर पाए। दूसरा चीज ये है कि जो वाटर प्योरीफायर होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, लो कॉस्ट के भी अवेलेबल है। बट दूसरा चीज ये होता है कि उन जो वाटर प्योरीफायर है उनमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, जो फिल्टर बल्ब आते हैं या जो फिल्टर जो आते हैं वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो वो अराउंड 200-300 रुपीज इतना आता है। तो हमारे देश का जो मजदूर आदमी है वो शायद इतना बेचारा नहीं कर पाता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं उनको, मेरे को वेस्ट मटेरियल तो फ्री में मिल गया, बस थोड़ा बहुत उसका खर्चा हुआ, वो किया कि मैं इजीली इनको दे सकता हूँ कि उन्होंने मैं अपने जो 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 फिल्टर है वो कम कॉस्ट में बना के दे सकता हूँ। तो मैं अभी जो प्लान कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि 10 रुपीज पर मंथ में, ओनली 10 रुपीज, केवल 10 रुपए पर महीने में मेरे हम लोग जो हैं देश के हर गरीब को शुद्ध पानी देते हैं। तो मैं जो फिल्टर अभी बना रहा हूँ उसका जो कॉस्ट है, जो शुद्धम के साथ ही अटैच है, कि जो कॉस्ट है उसकी वो केवल 10 रुपए पर लीटर है, सॉरी 10 रुपए पर मंथ का उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा। कि एक फिल्टर, एक प्योरीफायर है, वो प्योरीफायर का जो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो केवल 10 रुपए पर महीने में आपकी पूरी फैमिली फिल्टर पानी, प्योरीफाई बिल्कुल एकदम साफ पानी पिएगी। और ये मेरा ड्रीम है, दिस इज नॉट अ प्रोजेक्ट, दिस इज माय ड्रीम। और इस ड्रीम के कारण ही मैं मेरे बहुत सारे कुछ दोस्त आउट ऑफ इंडिया भी गए। तो मैं भी जाना चाहता था लेकिन जब मुझे ये चीजें लगी कि नहीं यार, मुझे यहीं रह के काम करना चाहिए, तो मैं किसी कंपनी के कैंपस में नहीं बैठा अभी तक। हमेशा यही सोचा कि यार मैं इन्हीं प्रोजेक्ट पे काम करूं। तो दिस इज माय ड्रीम कि मैं हर इंडियन के घर में 10 रुपए पर मंथ में सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर इंडियन को पानी पिलाऊं। और उसमें यह है कि हम लोग उसमें पानी केवल प्योरीफाई नहीं होगा, उसमें पानी ठंडा भी होगा। दूसरी बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट है कि उसमें ऑटोमेटिक, मतलब ऐसा है कि बहुत ही लो कॉस्ट और पानी प्योरीफाई नहीं हो रहा है, पानी उसके साथ आपका ठंडा भी हो रहा है। तो ये शुद्धम का सेकंड पार्ट है जो ड्रिंकिंग वाटर का है। अब शुद्धम जो मैन है उसमें हम लोग पूरा ये ग्रे वाटर को ही टारगेट किया है कि ग्रे वाटर चाहे कहीं से भी जनरेट हो, हॉस्टल्स हो, रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, कहीं भी हो, मतलब पानी तो कहीं ना कहीं हर जगह से वेस्ट हो ही रहा है। तो उसको रिसाइकल करके हम लोग रीयूज करें for all kind of secondary purpose, and I also request to the government
मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी करते हैं उसी तरीके से ग्रे वाटर रिसाइकलिंग कंपलसरी कर दीजिए। हर इंसान को फ्रेश वाटर नहीं दिया जाएगा हर चीज के लिए, कि आपको कार धोना है, आपको गार्डनिंग के लिए, आपको फ्लावर वॉशिंग के लिए, आपको फ्लशिंग के लिए, इन सारी चीजों के लिए आपको फ्रेश वाटर नहीं दिया जाएगा। आपको फ्रेश वाटर केवल ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कपड़े धोने तक के लिए दे दिया जाए, लेकिन फ्लश और इनके लिए नहीं दे दिया जाए। अगर ये हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि डेली डिमांड ऑफ जो फ्रेश वाटर है वो 40% तक तो कम हो ही जाएगा। कि इंसान को घर में जितना पानी चाहिए उसका 40% पानी तो ऐसे ही कम, क्योंकि वो उस पानी को यूज कर लेगा। तो अ, और ये गवर्नमेंट का मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने जो 2013 में सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, वो आज जो है गवर्नमेंट कर रही है। बहुत ही अमेजिंग वर्क है कि आप पानी को लेकर गवर्नमेंट इतना एक्टिव है और इतना कर रही है। और अब नए नए जो लोग हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कर रही है। तो बहुत ही अच्छी। टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे थोड़ा, कैसे आपका प्रोसेस क्या है उसके बारे में बताएंगे। हाँ तो अब एक्टिवेटेड कार्बन कैसे बनाएंगे कोकोनट शेल से, यही भी बता रहा, पूछ रहा था। नहीं सर, अभी वो मैं आईआईटी में हूँ तो मैं हमारा अलग टेक्नोलॉजी, लेकिन मैं बता उसको वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि हम लोग कैसे बनाएंगे। बट हम लोग एक बहुत ही अलग टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू करेंगे, उसको कोटेड भी करेंगे। केवल उसको कार्बन ही नहीं बनाएंगे कि उसको कोटेड भी करेंगे। तो ये है, उसको कोकोनट शेल जो होता है उससे एक्टिवेटेड कार्बन बनता है, बहुत वो होता है, इजी है, कोई उतना वो नहीं है। तो हम लोग उसको 500 to 700 डिग्री टेम्परेचर पे उसको हीटअप करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और उसको फिर तो ये टेक्नोलॉजी हमारा जो शुद्धम का जो फिल्टर प्रोसेस है उसमें 3 से मैं ज़्यादा पैटेंट, अभी ये सेकंड पैटेंट फाइल नहीं हुआ तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन हाँ ये है कि उसमें 3 से 4 स्टेजेस होती है फिल्टर वाटर को फिल्ट्रेशन की। कि फर्स्ट स्टेज में जो होता है वो सस्पेंडेड सॉलिड जो कचरा होता है वो हट जाता है। सेकंड स्टेज में जो होता है कि उसमें कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज होती है वो रिमूव होती है। थर्ड स्टेज में जो होती है जो डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं थोड़े बहुत वो अलग हट जाते हैं। लास्ट में जो उसका कलर ऑर्डर होता है वो रिमूव हो जाता है। तो ये 4 अलग अलग स्टेजेस होती है। उसके बाद क्या होता है कि हम उसमें ऑटोमेटिक जैसे ही उसका उसमें ज़्यादा कचरा हो जाता है या कोई चोकिंग हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसमें रिवर्स प्रोसेस चालू होता है। तो उसके थ्रू जो कचरा होता है वो ड्रेनेज में चला जाता है। कुछ आपको हाथ लगाने का भी जरूरत नहीं होता है कि आप उसको ये करो या ये करो, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली जैसे ही उसमें कचरा हो जाम हो चौक होगा ऑटोमेटिक सेंसर के थ्रू वो रिवर्स प्रोसेस चालू होकर ड्रेनेज हो जाएगा। तो ये और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उसके लिए नेचुरल कोगुलेंट डेवलप किए हैं जो अभी जो अवेलेबल हैं, जो एक्टिवेटेड कार्बन और ये सारी चीजें इनसे थोड़ा बेटर भी है। तो हम लोग वो करेंगे कर रहे हैं। तो मेरा यही ड्रीम है कि हम लोग जितना पानी को, बिकॉज हम लोग वी कांट मेक वाटर, मैंने पहले बताया कि हम लोग पानी को बना नहीं सकते, लेकिन पानी को रिसाइकल करके रीयूज कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ी चीज है सर, आपने बोला था अभी कि हम लोग ग्राम पंचायत के लिए, मेरे फादर जो है फार्मर है। अभी मैं 1-2 साल से अपने अपने जो जो खेत पर ट्यूबवेल है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि उसमें जब अच्छा पानी होता है तो वाटर पर्कुलेट होके चला जाता है अंदर और वो बोरवेल अच्छा चलता है। लेकिन इस साल बारिश कम हुआ रहा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, तो मैंने देखा कि उसमें क्या होता है कि वो ट्यूबवेल जो है एक थोड़ा टाइम ही चला और पानी ही नहीं है। फिर नया ट्यूबवेल लगाओ, पानी तो शायद है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा। तो मेरे को यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि मैं मोदी जी को भी गवर्नमेंट मन की बात में एक बार शायद बता भी चुका हूँ, शायद लिख चुका हूँ कि सर हम लोग जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो ट्यूबवेल है उसके मनरेगा के थ्रू हम लोग उसके आसपास हर ट्यूबवेल, मैंने अपना जो ट्यूबवेल देखा उसी के आइडिया लग गया। अब मैं गर्मी में शायद उस पर काम करूंगा कि उसके 5 फीट तक आसपास तक उसको खोद के, और ये वाटर रिचार्जिंग का जो सिस्टम होता है वो सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा 5 से 6 फीट डायमीटर में खोद के, 5-6 मीटर डेप्थ में खोद के उसमें ये जो एग्रीगेट वेग्रीगेट ये डाल के उसको, और मैंने किया भी है एक जगह, जब मैं जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में था वहां पर एक 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 ट्यूबवेल में मैंने किया भी था
कि हमने उसको 10 बाय 10 के उसमें खोदा, क्योंकि हम लोगों का ड्रीम ये था कि पूरा कॉलेज का जो पानी आता था, हमारे जो 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 सर थे वो बहुत एक्टिव थे इस मामले में, तो हम लोग वही करते थे। तो उन्होंने मुझे ही किया था कि तुम ये प्रोजेक्ट करो, तो मैंने देखा, मैंने ही किया था कि वहाँ 8-10 फीट में हमने खुदवाया था, उसमें ईंटे वीटे डाल के, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं करवाया था, बहुत कम खर्चे में उसको पूरा कर दिया था, और पूरा कॉलेज का जो पानी आता था वो उसमें ले जाके डाल दिया था, और वो बहुत अच्छा चला था। तो वहीं से आइडिया आया कि हम लोग जो पूरा खेत का पानी आता है वो उसको उसको ले जाके उसमें डाल दे। तो वहां पर अंदर तो टैंक है, अंदर तो कैपेसिटी है कि जितना पानी जाएगा वो रहेगा, लेकिन पानी अंदर तक जाना तो चाहिए। अब बरसात इतना अच्छा नहीं होता है, पानी इतना अच्छा जा नहीं पाता है, तो वो सारी चीजें हो जाती, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अब मैंने जो सोचा वो यही सोचा कि जो पानी जो है वो हम लोग जो पूरा खेत का जो पानी है वो ले जाके उस ट्यूबवेल में डाल दो, उस ट्यूबवेल में आराम से वो पानी नीचे चला जाए, टैंक फुल हो जाए, और वाटर जो क्राइसिस जो जो 1-2 महीने बाद ही चालू हो जाती है वाटर की प्रॉब्लम, लोग नए ट्यूबवेल लगवाते हैं, वो चालू नहीं। और मैंने उसके लिए यही सोचा कि खेत का पानी ट्यूबवेल में, मैंने एक थीम भी सोचा है कि खेत का पानी खेत में, खेत का पानी ट्यूबवेल में। ये बहुत ही अच्छा है कि हम लोग मनरेगा के थ्रू ये कर सकते हैं, कि मनरेगा के थ्रू जितना भी लोग काम करते हैं कि उसको ट्यूबवेल के आसपास कुआं हो, कुछ भी हो, जहाँ पे पानी आता हो खेत का, वहां पे खोदा और उस पानी को उसमें डाल दिया। तो ये मेरे बेसिक जो आइडियाज हैं ये वाटर के लिए ही हैं, लेकिन हाँ शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन धीरे 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 चीजें हो रही है, और जितना रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर चीजें हो रही है। तो थैंक यू सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अच्छा, आप फिर क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा, ठीक है। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Before proceeding further, I would like to introduce the format of questions. To ask your query, please click on the icon on the top right side of your screen to raise your hand. Once you raise your hand, please wait for your name to be called. Introduce yourself and your organization first to ask your query. So there is one query in chat box which is from Mr. Kirit Trivedi. He is asking, is there any difference in technique between standard water filters available in market and your Shuddham filter? Which one? Please share. या जो मार्केट में एसटीपी ईटीपी प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि वो जो होते हैं वो सीवरेज वाटर एसटीपी होते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, और इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि 3-4 स्टेजेस होता है कि पहले वो केमिकल डोजिंग करवाते हैं, फिर उसमें से सस्पेंडेड को अलग हो, जब बैठ जाता है वो नीचे, फिर उसको अलग हटाते हैं, फिर उसके बाद में फिर सैंड फिल्टर और ये फिल्टर करते हैं। तो उसमें 2-3 पंप यूज होते हैं, केमिकल का यूज होता है, और कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है वहाँ पर। आपको जो पंप होते हैं वो कंटिन्यूस चलते हैं, तो उसमें आपका जो वाटर डिस्चार्ज है वो भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। हमारा जो शुद्धम है वो उसमें कोई आपको केमिकल का ज़रूरत नहीं है, और कोई 3-4 पंप की ज़रूरत नहीं है, से इतना डिस्चार्ज की ज़रूरत नहीं है आपका। इवन आपका डिस्चार्ज जो हुआ है वो उसी में आपका जितना भले 5 लीटर पानी आपके बाथरूम में गया है वो उसी पे काम करके वापस बंद हो जाएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं, बहुत अलग है, ये केवल ग्रे वाटर के लिए, सिव नॉट फॉर द सीवरेज। Mr. Pavan Kumawat, he is asking, what is the size of sand and type of sand in all 4 filters? And what is the level of TDS before filter and after filter? Yeah, before filter and after filter we have tested the water in different labs। तो वहाँ पर हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं वो शायद मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अगर आप ईमेल देंगे तो मैं पूरा आपका वो सेंड कर दूंगा। साइज जो है स्टैंडर्ड साइज हम लोगों ने अलग डिसाइड किया है सैंड का, और आप चारों में केवल सैंड नहीं है, हम लोगों ने अपने नेचुरल कागुलेंट का भी यूज किया है। तो वी हैव फिल्ड सैंड इन टू टू बॉक्स।
तो दो जो ऊपर बॉक्स है उनमें सैंड है, लेकिन हम अब अभी जो बनाया है उसमें केवल सैंड नहीं है, वो थोड़ा अलग है। हमने अपने नेचुरल कोगुलेंट डेवलप किए हैं जो वाटर को में से बहुत ज़्यादा लेवल तक उसमें रिमूव टीडीएस और रिमूव टीडीएस को रिमूव करता है, और ऑर्डर कलर पीएच को भी थोड़ा मेंटेन रखता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, तो वो है। I request Mr. Kirit Trivedi, you may please ask your query. हाँ, खूब खूब धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी, आपका ये लेक्चर सुनने के लिए आनंद आया। एक सिंपल क्वेश्चन है कि आपने जो बताया कि शुद्धम फिल्टर आप बना रहे हैं, तो ये प्रोटोटाइप है या मार्केट में मिलता है, और अगर मिलता है तो उसकी कॉस्ट क्या है? पूरा शुद्धम जो ग्रे वाटर को फिल्टर करने वाला? जी हाँ। हाँ, तो सर अभी मार्केट में वो नहीं है, हम लोगों ने पायलट टेस्टिंग किया है, अभी हम लोग उसको बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब हमने जो जो मैनुअल था वो एक दो जगह लगाया था, लेकिन उनमें कुछ ड्रॉबैक आए थे कि हाँ ये इस प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी मॉडिफाई किया है और हम लोग पायलट कर रहे हैं अभी। तो मैं भी कि नेक्स्ट 1 ईयर में मार्केट में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद। जी, थैंक यू। So there is one more query which is from Mr. Rajesh Prasad, and he is asking, with all your technologies and initiative, how do you see the future of wastewater management? What can you repeat the question, please? With all your current technologies and initiatives, how do you see the future of wastewater management? फिल्टर वाटर मैनेज, तो हमारा जो यह एम है कि फिल्टर वाटर को मैनेज ऐसे करना है कि आप उसको फ्लश में यूज करिए, और फ्लश के साथ में जो कार वॉशिंग में यूज कर सकते हैं, एंड उसको गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। आप इवन अगर पानी का ज़्यादा ही शॉर्टेज है तो आप उसको जो क्लॉथ वॉशिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितना जनरेट होगा उतना ही वो खपत हो जाएगा। I request Mr. Pavan Kumawat, you may please ask the query. I request again Mr. Pavan Kumawat, you may please ask your query. Hello, Yes, am I yes, audible? Yes, sir. yes. Yes. Hello, Yes, yes, yes. sir. How we kill the bacteria and viruses without bleaching or without chlorination after the filter? Because car Yeah. washing and other things also need some unwanted pathogens like biological agents and these. So, Yeah. For this kind of what purpose, is the we have. procedure? I also told about this. Ki we have developed the natural coagulant, which is killed all these bacteria and viruses in the third stage of filtration. Okay. So have So you tested and got the yeah, we have yeah, tested 3 or 4 times. Many times we have tested water, filtered water in the labs. हम लोगों ने दूसरी जो लैब्स होती है वो प्राइवेट लैब, वहां पर भी वाटर को टेस्ट करवाया है, एंड वी आर यूजिंग दिस वाटर फॉर द फ्लशिंग एंड ऑल, दूसरे जो गार्डनिंग और इनके लिए यूज कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया एंड वायरस एंड द शॉप इज आल्सो अवेलेबल, शॉप का वाटर होता है तो उसमें बैक्टीरिया इतने जल्दी नहीं वो होते हैं, तो विद इन 24 आवर्स तो वाटर का यूज हो ही रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आया है। मैंने जहाँ तक देखा, मैंने 6 मंथ तक मैंने टेस्टिंग किया था, तो वो प्रॉब्लम नहीं आया था। got it. So no more queries now. ओके, Sir, now there are no more queries now, sir. Okay, then we can go for vote of thanks.
Yeah. A very, very good afternoon. On behalf of National Water Mission, I extend a hearty thanks to all of you for sparing your valuable time for attending this 6th Water Tech Talk on virtual medium. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks on this memorable occasion to such an intellectual delegates. We are really grateful to our Additional Secretary and Mission Director, sir, for his able guidance, which has always encouraged us for organizing Water Tech Talk series. He is the driving force behind this talk series. In the inception of Water Tech Talk has been initiated by Additional Secretary and Mission Director, sir. And first talk of this series was delivered on 9th of October 2020, and this is the 6th Water Tech Talk in that series. As you all know that today, Mr. Ashok Ghosh Ganju, former director of SASE, this is the Snow and Avalanche Study Establishment of DRDO, is a former director. He was supposed to give lecture on snow ice matter, but due to sad demise of his father, he could not come and could not give this lecture. So now Mr. Jitendra Singh Chaudhary, he has come on a very short notice, and we are humbled by your kind gesture in accepting to deliver this public talk at a very, very short notice, despite your numerous and tight schedule of assignment. Today, my words are not enough to express my gratitude and sincere thanks to our speaker, Mr. Jitendra Singh Chaudhary, who is working in IIT Kanpur for waste to value, to enlighten us about the low-cost wastewater filter system. He is working in cheapest water filter system, which will give cold water also as fully automated, less initial cost, low maintenance cost, noise-free, chemical-free, easy installation, etc. I believe we all have profited from your wealth of learning and experiences. Your talk has been quite educative and illuminating. We wish you God's protection in the service of country. I also express my heartfelt thanks to all of you attendees for joining this session of Water Tech Talk on virtual platform, and had a patient hearing of our speaker to make this event wonderful as well as successful. We appreciate your love and sense of belongingness to the country in general and to the water in particular. I hope you all must have enjoyed this session of Water Tech Talk as well as experiences shared by the speaker. I wish to sincerely thank all members of Team Water Digest, Team National Water Mission for giving your wholeheartedly support in organizing this Water Tech Talk. You have actually worked behind the screen. Thanks to all of you again, including attendees, for making this Water Tech Talk a resounding success. See you all in next episode of Water Tech Talk next month on 9th of April 2021. Till then, goodbye, take care and stay safe. Thank you very much. Jai Hind. Okay, thank you, sir. Jai Hind.